and is very interesting also. But to get into that, एक और concept है, और वो concept के पहले we'll do one sum. Do the last sum of your textbook, वो chapter का. It's a very interesting sum. You want to take this down? First you take this down. Question number 6. Rainbow Limited borrowed an amount of rupees 150 crores on 1/4/15 for construction of a boiler plant at 11% per annum. The plant is expected to be completed in 4 years. The weighted average cost of capital is 13% per annum. The accountant of Rainbow Limited capitalized interest of 19.5 crores for the accounting period ending 31st of March 16 due to surplus of funds out of 150 crores and income of 3.5 crores was earned and credited to profit and loss account. Comment on the above treatment of the accountant with reference to the relevant accounting standard. क्या लगता है आपको, सही है गलत है, पढ़ के बताइए. दिखाने का किधर भी नहीं है, कैपिटलाइज कितना आएगा वो बताइए. हाँ, कैपिटलाइजेशन के लिए आपको लगता है माइनस करना चाहिए तो कर दीजिए. कैपिटलाइजेशन होएगा. ओके. Yes, Mr. Roshan Mahanana. Why? Auntie Anjali, right? सेम मतलब आंसर क्या सर, क्या चंदा मांगने थोड़ी है. सर व्हाट यू तेरे साथ तो जो होना चाहिए था. ऐसा नहीं, you have to give me one answer. So you're not going to attempt this in exams. Fine. ठीक है. If you think so. It's a garbage answer. Read the first line. Rainbow Limited borrowed an amount of 150 crores for the construction of boiler plant. बोला तो है, specific है. लोन लिया है बॉयलर प्लांट के लिए. तो what is the doubt in that? First line of the sum says it's a specific borrowing and you're wondering what is to be done. It's like standing in front of in a mall, standing in front of gents toilet. It's written over there gents and is wondering where should I go? Should I go here? Should I go there? What nonsense! It is written over there. It's for the boiler plant. What are you thinking? सर इधर ये भी है, weighted average दिया है इसलिए. What आगे पूरा पढ़. Weighted average what? Cost of capital. Cost of capital. You know what is weighted average cost of capital? You know what is WACC? What is WACC? FM में आता रहेगा थोड़ा बहुत. तो उसमें डेट भी आता है, इक्विटी भी आता है. You're doing borrowing cost. इक्विटी कहाँ से आ जाएगा इसमें? KE, KR, KD. How can you get confused just because the weighted average language is used? Oh, weighted average. That is weight. हाँ तो वार नहीं है, वो WACC है. Weighted average cost of capital. This is weighted average annual rate, which is more of a capitalization rate. Only used for the purpose of this standard. WACC has a much more analytical application. VAR is just specific to this standard. That's all. सर वार भी है तो भी ये स्पेसिफिक ही था. अगर इनके दे भी देते. वार मतलब WACC तो ले ही नहीं सकते पहले. अगर वार दिया होता तो यूजलेस है. स्पेसिफिक बोरोइंग है तो वार क्यों चाहिए? और आप लोगों ने क्या सोच के लिया? 19.5 आया कैसे उसको? उसने WACC के हिसाब से किया हुआ. लो कैलसी लो, 150 करोड़ का उसका जो बोरोइंग है उसके ऊपर भाई साहब ने 13% अप्लाई किया जो वेटेड एवरेज रेट है. कितना आएगा बताओ? एग्जैक्टली
ये रेट ही रॉन्ग है. स्पेसिफिक बोरोइंग है, स्पेसिफिक बोरोइंग इसलिए 150 इंटू 11% करना पड़ेगा. 16.5 minus 3.5, 13 is the amount of capital at. बेस्ट तेरा आंसर. Seriously, it's first time मैं लिख के दिया. It is wondering what is the medal. सर वो कंफ्यूज हो गया उधर बैठ वो बाहर लगा तो मैं सोचा वेरी. चलिए. बिकॉज मेरे को ऐसा लगा कि वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो फिर पहले से बट वो सब में दिया है तो ये वो लिया रहेगा तो वो यूज कर रहेगा ऐसा समझे. no, that's okay. It's a wondering. Or you cannot get confused with this simple instruction. It's again same thing कि gents और ladies साथ में. अब मैं confused हो रहा है. चलिए. Write out principle. Forget about principle. Just write the answer. As per Ind AS 23. As per Ind AS 23. Any borrowing cost, sorry. Any borrowing cost incurred on a specific borrowing. Any borrowing cost incurred on a specific borrowing. That is borrowing taken for a specific asset. That is borrowing taken for a specific asset. Borrowing taken for a specific asset should be capitalized on actual basis. Should be capitalized on actual basis. After deducting any temporary income. After deducting any temporary income from investing of surplus fund. Surplus. Accordingly, in the given case, the borrowing has been taken for boiler plant. Borrowing is taken for boiler plant, which makes it a specific borrowing. Which makes it a specific borrowing. And thus the amount of borrowing cost to be capitalized. Amount of borrowing cost to be capitalized would be calculated as follows.
कितना 11% ना. डन. चलो ठीक. नाउ let's go ahead. There's a small concept, as I was saying. So this concept is basically applicable to everything. It's applicable to specific borrowing also. It's applicable to general borrowing also, because this is not a concept of this standard. We'll have to go to Ind AS 109, that is financial instruments recognition and measurement. So we are entering into financial instruments now. Okay, ये वहां से concept is logical, nothing great, but it's very logical. But the concept is discussed over there, जो apply यहाँ पे होता है. तो आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर पाएंगे. एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करेंगे इन डिटेल, एंड देन विल अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स. चलिए, लेट ऐसे भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, तो आज नहीं तो कल करना ही है. ओके, लेट्स से you have issued 10% debentures, okay, of rupees 100. एक ही डिबेंचर इशू किया 100 रुपए का. ओके, एंड while going for the issue, the debenture issue expenses were incurred. Of rupees 10, क्योंकि डिबेंचर इशू करने का प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट्स करना पड़ेगा, वट एवर एक्स वाई जेड, लीगल चार्जेस रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा कुछ किसी की अथॉरिटी के साथ, तो वो सब खर्चा करने में 10 रुपए का खर्चा हो गया तुम्हारा. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ मच इज द बोरोइंग कॉस्ट दैट इज बीन इनकर्ड? व्हाट इज द बोरोइंग कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू इनकर? बोरोइंग कॉस्ट कितना इनकर करोगे? 20. कैसे? एवरी ईयर 20? तो फिर फर्स्ट ईयर 20, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर जो 10 रुपीज है वो स्प्रेड कर देंगे लाइक फर्स्ट ईयर का जो मतलब इशू एक्सपेंसेस 10 रुपीज है, मैम लिसन. वो स्प्रेड करेंगे 10 साल के लिए. 10 साल के बाद पे तो फिर 10 साल तो क्यों करूं मैं स्प्रेड? क्यों करूं? एक प्रोबेबिलिटी है. वाओ. Yeah, anyone else? Yeah, Miss Namrata. स्प्रेड क्यों ना करो? रोशन महानामा नहीं. ओके,
आज जो तुमने डिबेंचर इशू किया, तुम्हारे लायबिलिटी कितना है तुम्हारा बुक्स में? नहीं, ऐसा नहीं काम होता है। ऐसा काम होता था एएस में, इंडियस में ऐसा काम नहीं होता है। इंडियस इज हैविंग अ डिफरेंट लॉजिक। इंडियस क्या बोलता है कि तुमने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया है, ओके, लेकिन ये डिबेंचर इशू करने के चक्कर में या 100 रुपया रेज करने के चक्कर में 10 रुपए का खर्चा भी हुआ है, तो नेट तुम्हारे जेब में कितना पैसा आया है? 90 रुपीज। तो आपके पास बिजनेस में यूज करने के लिए पैसा कितना है? सिर्फ 90 रुपीज है। यू डोंट हैव 100 रुपीज एट ऑल। हाँ, रीपे तुमको 100 करना है, जो भी एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, समझो 5 साल है, 5 साल के बाद, या लेट्स वो भी लिख देते हैं, टर्म ऑफ डिबेंचर 5 years, 5 साल के बाद रीपे करना है, तो रीपे 100 रुपया करना है, लेकिन आज यूज करने के लिए पैसा कितना है? सिर्फ 90। अच्छा, आफ्टर दिस व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट यू आर गोइंग टू एक्चुअली पे? व्हाट इज द इंटरेस्ट टू बी पेड? बोलिए। 100 रुपीज जो कि फेस वैल्यू है, 90 रुपीज तो रोकड़ा मिला है, 100 रुपीज जो फेस वैल्यू है उस पे जो कूपन रेट है, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज कूपन रेट? व्हाट इज दिस? फेस वैल्यू, ओके। 10% के हिसाब से 10 रुपया ही पे करोगे। तो आर यू पेइंग 10 रुपीज ऑन 100 और यू आर पेइंग 10 रुपीज 10% ऑन 100 और यू आर पेइंग 10% ऑन 90 रुपीज? 90। इफेक्टिवली यूज करने के लिए 90 रुपया ही है। तो 10 रुपया, माई मिस्टेक, तुम लोगों ने 10 रुपया 100 रुपए के लिए नहीं दिया, तुम लोगों ने 10 रुपया 90 के लिए दिया है। सो यूज हो रहा है 90, पर इंटरेस्ट पेमेंट होएगा 10 रुपया। So 10 rupees is not for 100, 10 rupees is only for 90. I hope you are understanding this. This gives rise to a concept known as effective rate of interest. ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है इज ओनली बिकॉज ऑफ द 10 रुपीज ऑफ एक्सपेंस। अगर मैं 10 रुपए का खर्चा नहीं करता हूं तो आप 10 रुपया 100 रुपए पे करोगे। जेब में 100 रुपया आया, इंटरेस्ट भी 100 रुपए पे जा रहा है, तो दैट इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनफैक्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और कूपन रेट सेम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तुमने बीच में खर्चा किया, तुम्हारा इफेक्टिव रेट अलग है, क्योंकि आप बिजनेस में यूज सिर्फ 90 रुपया कर रहे हो और इंटरेस्ट पे कर रहे हो 100 रुपए के ऊपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? अकाउंटिंग पर्पस के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस सर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच, okay, the present value of cash inflow will be equal to the present value of cash outflow. What is the present value of cash inflow? 90 रुपए का ही इनफ्लो है ना एक्चुअली, रोकड़ा तो 90 रुपया ही है। यस, एंड व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो? आपको पे कितना करने का है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? एक तो 100 रुपया पे करने का है, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा 100 रुपया जो रीपेमेंट है और इंटरेस्ट जो 5 साल का है, समझो 5 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 50 रुपया पकड़ो। ये जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये दोनों सेम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग ट्रायल एरर एंड इंटरपोलेशन। किया हुआ है आपने ऑलरेडी? यस और नो? IRR of this transaction. Don't start assuming it's IRR of the business. This is IRR of this transaction. I hope you get it. AS19 में भी यूज किया रहेगा आपने, ट्रायल एंड एरर एंड इंटरपोलेशन। Are you understanding this? चलो let's find the effective rate of interest in this case. ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो ना खाली। Effective rate of interest. India is 109. Done? So how do you calculate the effective rate of interest? So we need two things. We need present value of cash inflow, okay, which will be 100 minus 10 of expense, you get 90. And then we need PV of cash outflow, okay. PV, we know what is cash outflow and we need to do the equation, so let's go for it.
year 1 to 5 and 5 cash flows 100 into 10%, 10 rupees, and at the end of 5th year 100 रुपया repay भी करने का, and then we do trial and error. So let's go for present value at the rate of say 10%. पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कूपन रेट ही लेने का, क्योंकि उसका आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा. नहीं ओके, भरोसा नहीं आपको. पीवी फैक्टर एंड पीवी, चलिए बताइए पीवी फैक्टर बताइए. जीरो पॉइंट ऑब्वियसली 5 साल चाहिए. 0.6209 79 कंफर्म करो. चलो मल्टीप्लाई करके पीवी निकाल के दो. हंड्रेड कोई 10% से मल्टीप्लाई करके ही आंसर आया, तो बैकवर्ड जाएंगे तो 100 ही आएगा ना. अप्रोक्सीमेटली 100 ही आ रहा है ना, 99 पॉइंट समथिंग समथिंग आता रहेगा. यस इट इज 100. ओके, बट डू वी वांट 100 और डू वी वांट 90? वी नीड 90, सो आई हैव टू स्टिल इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या करना है, कितना करूँ? 15% करो. 11%, फिर 11.5 11.25 करते रहना. 3-4 पॉइंट आगे लेके जाने का. गिव मी द आंसर. चलो फैक्टर्स निकालो पहले. $3.6047. Everyone confirm it. 4972 amount. 2 decimals. I know that is common sense. 100 into that has to be that. Get me the first one. 36 plus 49 around 86 आएगा. Check. 10. This is 10 Ray Baba. 10 multiply 10 into this has to be 36045, and this has to be into 100 has to be approximately 50. So this is around 86 rupees, you can say. Rounding off ignore करेगा. तो our answer lies somewhere between 10% and 15%. तो अभी क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा. Therefore effective rate of interest is equal to somewhere between 10 and 15. तो 10 के तो ऊपर ही है, तो 10% plus. How will you do interpolation? कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? क्या मालूम, मैं तो लॉजिक यूज करता है. मेरा सिंपल कॉमन सेंस है. 100 माइनस 86, 14 रुपीज का डिफरेंस है. अमाउंट में ये 14 रुपीज है, परसेंटेज में कितना है? सो दिस 14 रुपीज इज रिप्रेजेंटेड बाय 5%. बराबर है. वी डोंट वांट 100 टू कम डाउन टिल 86. आई वांट 100 टू कम डाउन ओनली टिल 90. तो फिर 10 का जो डिफरेंस है दैट इज 100 माइनस 90, वो कितना परसेंटेज होगा? यू क्रॉस मल्टीप्लाई. $3.57. So what's your 13.57 is the effective rate of interest. So basically you're not paying 10% interest, you are paying 13.57% interest because 10 rupees are already gone in expenses. 90 रुपए के ऊपर आप 10 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, that is effectively coming to 13.57. Are you getting it? Remember this percentage is only for accounting. So you have two rates now. 10% is for payment as per contract, and accounting purpose के लिए it is 13.57. Are you understanding this? Once you get the effective rate of interest, you are supposed to make something known as amortization schedule. This language is coming from financial instruments.
कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ईयर, ओपनिंग बैलेंस, एड इंटरेस्ट लेस पेड इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। चलो फर्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा लोन का? ₹90, क्योंकि जेब में ₹90 ही आया है, जेब में ₹100 है ही नहीं। आज का लोन कितना है? आज का लोन ₹90 ही दिखेगा तुमको। ये ₹90 को इंटरेस्ट चढ़ा चढ़ा के कितना करेंगे? ₹100। देखो कैसे होगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 13.57। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। सॉरी, ये से 12.13। पेमेंट कितना होएगा बेटा? 213 फैक्टर्स दे रहा है, अमाउंट है ना, 2 डेसिमल तक ही बताने का रहता है अमाउंट। आई नो दैट। पेमेंट कितना होएगा? सिर्फ ₹10 इंटरेस्ट होगा। सो व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस? या यू डोंट नीड कैलसी फॉर दैट एक्चुअली। 92.21। ओके, सेकेंड ईयर देखो, सेकेंड ईयर में कितना रहेगा ओपनिंग बैलेंस? 92.21। इसके ऊपर 13.57 इंटरेस्ट। चलो ₹12.5। पेमेंट कितना आएगा बेटा? ₹10। तो बताओ कितना है क्लोज? चेक करो, इसका भरोसा नहीं है। इज इट राइट? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कितना रहेगा? 94.73। इंटरेस्ट हटाओ 12.85 माइनस पेमेंट कितना आएगा? ₹10 फॉर द न्यू क्लोजिंग 90.58। देन अगेन फोर्थ ईयर बताइए, 97.58 प्लस -10 100.83। ठीक है, नाउ वेट, अब ये लास्ट ईयर है। यस, 100.83 प्लस इंटरेस्ट पता नहीं कितना है, पेमेंट कितना करने का है? 110 का करने का है। 110 कैसे? प्रिंसिपल ऑफ 100 और लास्ट ईयर का इंटरेस्ट भी तो है। यस, और उसके बाद बचेगा कितना? अंडा। तो इसके लिए टू अवॉइड द राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस, टू अवॉइड द राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस, इसको बैलेंसिंग फिगर ले लो। देखो कितना आ रहा है। $9.17 100.83 पे 13% लेके देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहेगा। कितना? Are you sure of your calculations what you have done? There's quite a gap. एक बार recalculate करके देखो। Are you sure of all your calculations what you have done? 13.57 is right. मुझे यहीं पे गड़बड़ लग रहा है, एक बार वापस करके देखो। 10 into 5 divided by 100 divided by 14, I'm sorry. Okay, ठीक है, just recalculate the interest. Okay, good enough. So we basically understood what happened. वो जो ₹10 का, अच्छा एक काम करो, I'll tell you the magic. कैलसी लो हाथ में। एवरी ईयर एक्चुअली पे कितना किया? ₹10, लेकिन इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज किया? 12.21 12.51, राइट। ये दोनों अमाउंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल के ऐड करते जाओ। लुक एट इट, पहले समझ लो, दिस एंड दिस, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2.21। टेक इट ऑन द कैलसी, प्लस 2.51
प्लस 2.85 प्लस 3.24 माइनस 0.83 कितना है? अप्रोक्सीमेटली 10 आया। वो क्या है? 10 रुपया जो खर्चा किया था ना स्टार्टिंग में, उसको तुमने 5 साल में स्प्रेड कर दिया। यू आर स्प्रेडिंग दैट 10 रुपीज ओवर द टर्म ऑफ डिबेंचर सो दैट यू कैन फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। 90 रुपए का पैसा 5 साल बिजनेस में यूज होने वाला है, तो खर्चा भी 5 साल में आना चाहिए, इसलिए 10 रुपए को स्प्रेड करना चाहिए आपको। पर कैसे करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप चेक करो, अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए ही एक्स्ट्रा गया रिकॉर्डिंग में, अकाउंटिंग में। रोकड़ा तो 10 ही गया है। Are you understanding what I'm saying? So basically you are effectively spreading the expense over the term of the debenture or term of the loan. Why? So that you can follow matching. How will do that? By doing the calculating the effective rate of interest. तो ये वाला जो कॉलम है, this is purely for accounting. This is purely for accounting. ये PL में डेबिट होएगा. This is for cash payments. वो जो 10 रुपया स्टार्टिंग में खर्चा किया था, उसका ऐसे अकाउंटिंग किया। Are you understanding this? Yes or no? चलो ठीक, take this down. Do one thing. Let's also pass the entries and get a bit more clarity. चाहिए entries के? जाने दो, अब वसूल करो पैसा। चलो Y0. What is Y0? जिस दिन डिबेंचर इशू हुआ, क्या एंट्री पास करेंगे? पैसा आया, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। कितना बेटा? 100 रुपया। डिबेंचर इशू करके 100 रुपया ही है। टू ऑब्वियसली अभी खर्चा किया, तो क्या एंट्री पास करेंगे? डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश बैंक। कितना बेटा? 10 रुपया। अब सवाल उठता है कि ये 10 रुपए का अकाउंटिंग या डिबेंचर इशू एक्सपेंस का करने का क्या? तो वी विल से 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस। अरे पहले उड़ा तो सही डिबेंचर को। कैसे स्प्रेड किया? पीएनएल में कैसे जाएगा? इंटरेस्ट के नाम से जाएगा कि डिबेंचर इशू एक्सपेंस के नाम के नाम से जाएगा? तो फिर इसको क्यों लेके जा रहा है पीएनएल में या किसी और जगह पे? वही तो लॉजिक था ना कि इंटरेस्ट बना के। सी, अगर मैं अलग से स्प्रेड करता हूं, समझो एसएलएम फॉलो करते हो, तो हर साल 12 रुपया आप राइट ऑफ करोगे 5 साल, इंटरेस्ट भी रहेगा प्लस अलग से राइट ऑफ भी होगा। ये लॉजिक से जाओगे तो ऑलमोस्ट सेम ही बैठता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पीएल में जाना चाहिए वो है। लेकिन होगा क्या पता है कि अगर समझो मैं इंटरेस्ट को अलग लिखता हूं और डिबेंचर इशू एक्सपेंस एवरी ईयर 2 रुपया अलग से लिखता हूं, बहुत सारा रेशियो एनालिसिस में इंटरेस्ट कम आएगा। एनालिसिस करने वाला क्या सोचेगा? इंटरेस्ट तो सिर्फ 10 रुपया ही है, बाकी तो डिबेंचर इशू एक्सपेंस है। ऐसा नहीं है, वो डिबेंचर इशू एक्सपेंस उसके साथ ही बैठा हुआ है। यू कैनॉट सेग्रीगेट। बोरोइंग कॉस्ट में दोनों आना चाहिए, वो बोरोइंग कॉस्ट के ब्रैकेट से निकलने का चांसेस है। बिकॉज ऑफ दिस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इंटरेस्ट के नाम से ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दैट्स एक्चुअल वे ऑफ लुकिंग एट इट। सो इफ यू हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, वी आर डूइंग द सेम थिंग व्हाट यू वुड हैव डन ईदर वेज। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का, थोड़ा बहुत अमाउंट का इधर उधर डिफरेंस है, लेकिन राइट ऑफ तो दोनों हो रहा है यूजिंग मैचिंग प्रिंसिपल। लेकिन उसको जो देखने का तरीका है वो पूरा चेंज जाएगा। पीएनएल में सिर्फ इंटरेस्ट दिखेगा, विच इज द एक्चुअल वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि ये पूरा बोरोइंग कॉस्ट ही है। आर गेटिंग इट? डोंट ट्राई टू सेग्रीगेट दैट। आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। और इसके बाद 5 साल का एंट्री पास करोगे आप। फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड एंड फिफ्थ ईयर एंड। चलो क्या एंट्री पास करेंगे? पहला एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10% डिबेंचर, yes, and second entry would be 10% debenture account debit to cash bank. चलो बोलो, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 12.21
12.21 12.21 अभी डिबेंचर पे कितना होएगा 10 यस ना इफ यू लुक एट इट केयरफुली ये जो हम लोगों ने टेबल बनाया था इसमें 90 रुपए का डिबेंचर था जिसमें 12.21 ऐड किया और -10 किया था यहाँ पे भी वही हो रहा है तुम्हारा डिबेंचर है कितने का यहाँ पे 100 का था यहाँ पे 10 रुपया कम किया तो 90 का डिबेंचर हो गया यस और अभी आप क्या कर रहे हो उसमें वही डिबेंचर में आप 12.21 ऐड कर रहे हो और 10 रुपीज माइनस कर रहे हो तो वो जो टेबल फॉर्म में था अभी वही जर्नल एंट्री के फॉर्म में आ रहा है आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग यस और नो and then I will just add one more entry just for our sake. P&L account debit to interest कितना होगा बेटा 12.21 P&L में 10 रुपया नहीं जाएगा P&L में 12 रुपया जाएगा क्योंकि 2 रुपया एक्स्ट्रा किसका है वो एक्सपेंस का है जो धीरे धीरे करके राइट ऑफ हो रहा है आर यू गेटिंग इट चलो ठीक है नेक्स्ट इज y2 में क्या आएगा 12.51 12.51 खर्चा कितना पे करोगे 10 पीएल में कितना जाएगा 12.5 देन यू हैव 12.85 खर्चा कितना पे करोगे 10 पीएल में कितना जाएगा 12.85 y4 13.24 था if I'm not wrong 13.24 13.24 पे कितना करोगे अभी भी 10 13.24 then you have 9.17 पे कितना करोगे 110 पीएल में कितना जाएगा 9 आर गेटिंग इट अरे यस और नो शायद हमने जो 15% लिया ना वो बहुत बड़ा गैप था यू वुड हैव टेकन 12% तो और थोड़ा नैरो गैप होके ज्यादा प्रिसाइज आंसर आता बट दैट्स ओके देयर इज ऑलवेज अ चांस इन ट्रायल एंड एरर एंड इंटरपोलेशन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग दिस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूज्ड इन many places specifically where Ind AS is applicable are you getting it take it down and that's all for the day हो गया I asked you to check. This guy says yes. What आया था? None of you is checking anything. 3 point? You are dead then. 3.321. So this comes to around 33.52. So this is around 83.52. Oh my god. So this becomes, so this is, and Prashant is also copying, he's also not checking anything. बोलो 5% कितना आ रहा है? Yeah. 16 point. My bad. Get me the figures. Write down later. So what's the answer? Multiply 16.48. I'll do it. 30. Leave it. 3.0 पकड़ के चलो. %13. So once you get 13%, all these figures will undergo a change. So will this figures. So will this figures. And if you do this kind of list in exams, legendary.
बोलिए, कीजिए शुरू। 90 के ऊपर 13%, 11.7। ओ माय गॉड, तो ये कितना हो जाएगा? 91.7। 90, स्टॉप राइटिंग, फर्स्ट कैलकुलेट, तेरी वजह से हुआ है। 90, 91, शाना खुद लिख के घर पे भाग जाएगा। 11.92, so this comes to 662, right? Then 93.62, 12.1779। 95.7. किसी पे भरोसा मत करो, खुद का कैलकुलेशन खुद करो सब लोग। टेक दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, दिस विल बी अ बिट रियलिस्टिक। 7.6 आएगा, 7.5 आई कैसे रहा है? नहीं, चेक करो। 110 minus 98.24, 11.76। What's wrong? Now do one thing. 1.70 plus 1.92 plus 2.17 plus 2.45 plus 1.76. Exact 10. Exact 10. No, he's not the only person to be blamed. You are equally to be blamed. You just blindly followed him. याद रखो फिगर्स अभी। Oh. नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, नाउ पे फॉर इट। आराम से लिखो, कोई नहीं। याद रखो फिगर 11.70 फर्स्ट ईयर, 11.70, 11.70। पीएल में कितना जाएगा? 11.70, 11.70। सेकेंड ईयर 11.92। 72 नहीं हो सकते, 92 था। नहीं ना, मेरे को नहीं लगना है। 11.9। हाँ बोलो कितना बोले? 12.17। हार्डर से, जोर से। 12.17, 12.17। Then don't remember it. 12.45, 12.45, 12.45। पीएल में कितना जाएगा? 12.45, 12.4। Legend. Who inspired you to calculate it again? Check it. You should have done that time itself. You trusted this guy.